Good afternoon, everyone. We have with us Mr. Balaji Shinde. Mr. Shinde recently got placed in a lovely company called Chess Vista. And as a BCom student, I must say he got a very interesting package, more than what we normally expect from BCom students. So, hello, Mr. Shinde. How are you? I'm fine, sir. How are you too, sir? I'm fine as well. So, for everyone, for every student who's watching this, please introduce yourself. What you've done, what you've studied, your career. Please let us know. Okay. Okay. My name is Balaji Shinde, sir. I have completed my school from school still 10th standard from Terna Public School, which is in Dharashiv district, Okay. Dharashiv or Usmanabad, you can consider as. And from Mm-hmm. 11th and 12th, I completed it in the commerce in from Latur, which is Rajashri Shaw College, Mahavidyalaya. And Okay. after that, uh, I just went to Pune for doing the CA. And during my BCom period, Bachelor of Commerce, during the period of 2017 to 20 for 3 years. Mm-hmm. I have also cleared a CA foundation, and I was preparing for a CA intermediate, and Okay. completed my Bachelor of Commerce from Abasai Garwai College, Okay. and I have done totally in 2020, and in 2021 I was also in for CA intermediate, and it was period Mm-hmm. of COVID. So for 1 year, I have given everything else, but I didn't find anything uh, realistic. So during the COVID period, I was so worried, and I was so facing so much difficulties because I was not in a financial uh, well in financial. I was facing financial problems, Okay. and at 2022 to 2023 for a continuous of 2 years. I, I was doing the jobs in pathology laboratories in healthcare sector as a Okay. uh, as a junior accountant. It Okay. was a startup-based company, so I was having a exposure for everything else, like somewhat in marketing, somewhat in core domain, and somewhat in receivable as well as payable, tying with vendors and collection of money and everything else. So I learned too much in the startups. And in 2024, I was just scrolling and went through. Uh, uh, I was not satisfied with my current job, so I was Mm-hmm. just thinking for a top MNC companies, and I was having a big dream for achieving like a top giants, top. I always like to perform very good things, and always wanted to upgrade my skills. So Okay. I just went through discussing here and there, and just falling for every classes. So uh, actually, my key interest was in finance domain. So I was Okay. not getting at a reasonable price and at a reasonable fees and everything else. I was not getting a proper skills and proper classes which can just give me a guaranteed courses. I will not take the classes names of those classes. They were offering, they were taking a 1.5 lakh, approx 1 lakh 50,000 rupees for a Wow. guarantee courses, and that's too much money for me, sir. Right. With that also, but I don't find giving a 1 lakh 50,000 as a fees for such courses, and that was too much. So I was just scrolling, and because so I was not. I just want to say I was not thinking that job was learning is also providing a investment banking course. So I just went through website for one last time. I was just sitting and just scrolling. So I just got an advertisement for my job as learning investment banking, which is a Was this position. on Instagram? Was this on Instagram? Yes, sir. Yes, sir. Okay. While Perfect. watching while watching Instagram stories of my friends, I just Okay. got an ad there, and it was a Kuldeep Sharma sir. So I was thinking like just I will just call one time and ask for how much of the fees on there, and I was surprised for the after hearing the fees and skills I was getting after calling sir. So. Right. Right. Uh, So I think in this much piece, no one is giving you that type of skill, that type of various like Excel and hand-to-hand experience, and also you were given a job guaranteed post. Guarantee means no one is providing in that. I think sometimes if I think in back notes, I just remember that this is not a course or this is not a private institute. It is like a charitable. So they are just giving a charity for a student who are
who are eager to learn and just want to pursue a dream job. I was so I just can't express my feelings. I just can't express in some words. So and also sir, some of the student and also even minimum fees which are having. I just called a counselor. I think counselor was somewhat a Sakshi ma'am. Sakshi ma'am, senior he was. I spoke with him. Right. So so sir, you are not only the fee structure, sir. Apart from your fee structure, you are also giving a service like a EMI. Some students are not so weak in a financial position, are not in a financial position. They just can't afford at a single time payment and just can't just grab all the courses in one time. So you are just providing the service like a, if it is a course of a 6 month, you are just giving time period of a 6 month. You can pay two to 3,000 now, and after 2 months, after 1 month, after 3 months, you can pay the rest of the amount. This was very good, fantastic idea, sir. Actually, Balaji, it's more about our students. Our courses are relatively well priced, and we understand that people need money to, get to better jobs. But we try to, be as lenient as possible, as, how do I put it? As understanding as possible towards our students, towards candidates who want to do something, such as yourself. And obviously, when we have candidates such as yourself, they end up doing so good that they get good jobs, right? Yes, And yes, that's the best part about this. We have such good yes, candidates that they actually perform very well. Now that you told us that you have worked as a junior accountant, right? But yes, sir. did you get any meaningful finance and experience there? Because my understanding is it's only accounts and maybe some marketing, right? Yes, sir. Yes, sir. So, during those period of 2 years, from Hmm. 2020, 22 to 23, Right. sir, I just got some more skills in finance, receivable payables, and just basic skills, where I don't see a future in that. I just want to be at a top MNC. I just want to work with it, with the top people, so where they are having a good visionary, good visions, and dedicated, and a lot of struggling people. So I always dreaming of them, sir. So I just quite from the in that field in that job, sir. And and just thought for a few days like I should if I should grab various skills in finance as well as analytic after having a hand-to-hand experience in various tools like Power BI, Tableau, SQL, financial and in financial modeling, financial equity research analysis, this year comparable analysis, debt to equity ratios, and this was such an interesting field, sir. So I just can't express my all the gratitude, sir, for this job journey. Uh, Please, so it's okay. We are happy to see that our students are placed. Balaji, आप जो काम करते थे, you worked on assignments with me. You made a lot yes, of sir. mistakes. आप बहुत गलतियां करते थे, आपको याद हो? We still working हाँ on the सर. Indus Towers model, right? अभी भी उस पे Yes, sir. काम Yes, चल sir. रहा है. बट Yes, sir. आप क्या है, आप मॉडल देख के उसको रेक्टिफाई तो करते हो एटलीस्ट. यू हैव द एटीट्यूड कि हाँ मेरे को कुछ नहीं आता तो मैं सीखूंगा. यू आर वर्किंग Yes, ऑन sir. दैट. वो बेस्ट पार्ट है, Yes, sir. राइट? Yes, sir. So now let's go through the process. You said that you saw the ad देखने के बाद आप Yes, sir. लर्निंग की. बट आप Yes, लर्निंग sir. पूरा करके जब असाइनमेंट्स करते, लेट्स डिस्कस दैट. What about the assignments and suddenly the placement? Yes, sir. So assignment की बात बोलूँ तो सर assignment was a Hmm. fantastic assignments uh, and, and अगर तुम छोटी छोटी से मतलब एक एक मिनिमम वर्ड में भी अगर तुम गलतियां करोगे ना तो तुमने क्या सर तुम एज ए मेंटर सर तुमने क्या आपको आपको अगर कुछ पूछूं भी मैं तो एकदम नहीं कि जो स्कूल के स्टूडेंट्स रहते वो उसी तरह से नहीं क्या तुम जवाब देते थे अगर बार बार भी पूछूं मैं तो बार बार देते थे तुम कभी हेजिटेट नहीं होते थे सर तो मुझे नहीं कि ये आपकी सर्विस ने का बहुत बढ़िया लगी और मैंने एक जॉब से ये कहना चाहता हूँ सर मतलब इतने स्टूडेंट्स है और इतने स्टूडेंट्स के मॉडल तुम्हारे पास आते हैं तो तुमने क्या इतने मॉडल्स ने क्या ट्रैक कर पाते हो ये नहीं क्या सर आपने क्या बहुत मतलब अलग ही चीज हो आप कमाल हो सर मतलब और नहीं सर Thank you, thank एक you. मॉडल एक मॉडल डीसीएफ का सर नॉर्मल ने क्या चेकिंग चेकिंग करना होगा तो कम से कम 17 से 18 ने क्या शीट्स रहते और हर शीट्स पे ने क्या तुम सर एक ना एक नॉर्मल जो वर्ड रहता अगर वाट रहेगा तो वाट की स्पेलिंग WHAT है तो टी की जगह अगर यू आया तो तुम ने क्या उसको भी रेक्टिफाई करते हो मतलब इतना पीनी पीनी रेक्टिफिकेशन और ये रेक्टिफिकेशन एक बार आपने रेक्टिफाई करके स्टूडेंट को भेज दिए तो स्टूडेंट ने क्या नेक्स्ट प्रोजेक्ट में रिपीट नहीं कर पाता और क्योंकि ने क्या उसको बार बार पूछने से ने क्या और उसको उसके दिमाग में बैठ जाता है कि आप अपने को रेक्टिफिकेशन नहीं करने के क्योंकि आपने लास्ट टाइम ये किए थे और तुम
ये प्रॉब्लम सॉल्विंग जो स्किल्स है और तुम्हारी ने के जो पेशेंस लेवल है सर, मतलब हर हर स्टूडेंट को नहीं क्या उसके उसके हिसाब से उसको नहीं क्या तुम ये करते हो, उसको देते हो। तो मतलब ये बहुत लाजवाब है। और मैं एक ही चीज पे कहना चाहूंगा जॉबर्स को कि सर तुम जैसे स्टूडेंट के लिए देखते हो ना सर, अमन सर, तुम जैसे स्टूडेंट के लिए स्टूडेंट के बारे में सोचते हो, वैसे नहीं क्या तुम्हारे बारे में जॉब और लर्निंग में सोचना चाहिए और थोड़ा तुम्हें रिलैक्स देके नहीं क्या थोड़ा जो वर्कलोड है वो कम करना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। प्लीज बहुत बहुत थैंक यू आपको कि आप इतना हाईली एंड के लिए सोचते हैं। फॉर मी स्पेशली आई एम वेरी वेरी थैंकफुल फॉर दैट बालाजी। यस राइट यस नाउ आप तो असाइनमेंट कर रहे थे, राइट? आप सारा असाइनमेंट किए नहीं हो राइट अभी तक? बीच में यस आपको सर, यस इंटरव्यू कॉल लग गया, सो लेट्स डिस्कस यस अबाउट सर। दैट। वो कैसा रहा एक्सपीरियंस? सर इंटरव्यू पे बोलो तो मैं बोल ही नहीं सकता, क्योंकि सर अगर कोई बंदा एक्सपीरियंस रहेगा, मैंने बहुत सारे एक्सपीरियंस बंदे को पूछा भी है, तो उन्होंने कहा कि हमारे पास एक्सपीरियंस 2 साल 3 साल का रहकर भी हमें कॉल नहीं आती। वो तो मैंने कहा तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है, तो उन्होंने कहा हमारा रिज्यूमे सब कुछ अपडेटेड है, सारी चीजें नहीं क्या हैंड टू हैंड है, बट हमें क्यों नहीं आती वो ओके। वही पता नहीं है। मैं तो कभी सोचता था अच्छा हुआ मैंने नहीं क्या परस्यू कर लिया जॉब लर्निंग्स में, क्योंकि मैं तो बिगिनर तो हुई हूँ, बट अगर कोई एक्सपीरियंस भी बंदा रहेगा ना तो उसे भी परस्यू करना चाहिए। करना इसलिए चाहिए क्योंकि मैम रिज्यूमे जो ये करते वो मैम विशाखा मैम है, वो नहीं क्या रिज्यूमे इतने अच्छे तरीके से अपडेट करते हैं ना, तो सर क्या तो जाबाज में नहीं क्या ये पूरे पैकेज में नहीं क्या सारा कुछ इंक्लूड है सर। रिज्यूमे तो है और गारंटी भी है, ये गारंटी कोई देता नहीं सर, गारंटी में मैंने क्या जॉब की है। और तुम जैसे मेंटोर से जो कि नहीं क्या अगर मैं रात को 6 बजे 7 बजे या फिर 8 बजे भी कोई मैसेज करूंगा तो तुम हैंड टू हैंड रिप्लाई देते हो, तुरंत रिप्लाई देते हो। और मैडम भी अगर शिक्षा मैम है उन्होंने भी बहुत हेल्प कर दी, मतलब अगर मैं एक मैसेज सेंड करूंगा तो मैक्सिमम 5 मिनट के अंदर नहीं रिप्लाई आता। तो ये ऐसा होता नहीं है किधर। और मतलब एक बोलना है कि तुमने क्या सर एक कॉल देख के अगर जब तक वो सिलेक्शन नहीं होता या फिर इंटरव्यू में नहीं क्या क्वालिफाई ना होता तब तक तुम रुकते नहीं, मतलब एक टाइम पे तुम 3 से 4 कॉल देते हो, ये नहीं तो वो हो जाएगा, वो नहीं तो वो हो जाएगा, बस ट्राई करो, तुम ट्राई करो। और तुम्हें जो भी रिसोर्स चाहिए तुमने कैसे जो भी अगर कंपनी का कोई कल इंटरव्यू है तो अगले दिन ने क्या कितना बचा हो तो जो जो स्टूडेंट को या फिर बंदे को ने क्या थोड़ा एनालिसिस करके यूट्यूब पे इधर उधर से एनालिसिस करके जो क्वेश्चंस निकालने पड़ते हैं वो सारे क्वेश्चंस लेके तुम मेंटो तुम खुद नहीं कि उनको सेंड कर दो कि भाई ये सारा हाथ में दिया है, सिर्फ उसको पढ़ो उधर जाके बोलो, मतलब इतना राइट। अच्छा सर्विस है। सी बहुत बालाजी, बढ़िया सर। लाइक लाइक आप मुझे बताइए कि आपको ऐसा क्यों लाइक नीड लगा कि लाइक मेरे को स्पेशल ये वीडियोस देखना है, एंड क्या आपको लगता है ये वीडियोस देखने के बाद आप नॉर्मली मॉडल्स बना पाते यस सर, यस सर। मैंने जो स्टार्टिंग में वीडियोस देखे थे कुलदीप सर के, हैं? वो वीडियो बहुत बढ़िया लगे मुझे, क्योंकि सर मैं मेरा जो बैकग्राउंड वो सारा इंग्लिश मीडियम का, तो मुझे सब सही लगा, सब अच्छा लगा। हम्म। और सर ने स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस सर ने समझाई है। मुझे सिर्फ मैं तो एक ही बताना चाहता हूँ सबको कि भाई वीडियो और सेक्शंस ने के कम है, पर उसके ऊपर प्रैक्टिस तुम जितना ज्यादा करोगे उतना जल्दी सीखोगे, थोड़ा टाइम लगेगा पर बहुत जल्दी सीखोगे। और नाउ आप प्रेसिस्टा का जो इंटरव्यू दिए थे उसके बारे में बताइए, लाइक इंटरव्यू प्रोसेस क्या था एंड यू टेस्ट एंड ऑल, वो कैसा था, व्हाट वाज दैट? सर फर्स्ट ऑफ ऑल तो इंटरव्यू जो रेफरेंस मिला था वो आपकी तरफ से ही मिला था, और रेफरेंस की वजह से ही नहीं क्या मुझे एचआर का कॉल कॉल आया, और एचआर हम्म। ने क्या स्टार्टिंग में बेसिक अकाउंटिंग के क्वेश्चंस पूछे, जो कि नहीं क्या ओके। अगर हमने तो डीसीएफ में फाइनेंशियल मॉड्यूल में कुलदीप सर ने वो तो नहीं क्या मतलब प्रोफेशनल लेवल जो सीनियर लेवल रहते सारे टीचर्स हो उन लेवल के हिसाब से पढ़ाया है, तो ये बेसिक तो हमें कुछ भी नहीं है सर, ये तो हो जाएगा। तो फर्स्ट स्टेप तो हाँ। वो रही। और फिर असाइनमेंट रहा, असाइनमेंट ने एमसीक्यूज में फॉर्म में रहा, जो कि नहीं सेक्शन बाय सेक्शन रहता, जो थोड़ा एब्स्ट्रैक्ट रहता, थोड़ा रीजनिंग रहता, थोड़ा हम्म। इंग्लिश रहता ग्रामेटिकल, थोड़ा अकाउंटिंग या फिर फाइनेंस रहता, तो वो एमसीक्यूज पे बेस रहता। अगर वो क्रैक करेंगे तो तुरंत नहीं क्या तुरंत एचआर का फोन आएगा, अगर नहीं आएगा फोन तो अगर मैक्सिमम स्टूडेंट नहीं क्या सब असाइनमेंट तो दे देते हैं, अगर क्वालिफाई भी हो गए तो भी एचआर का फोन नहीं आता। बट अच्छा। जॉब आज में जो आप है विषय का मैडम है वो, अगर मैंने तुमको कहा कि सर मैंने अच्छे से दिए थे असाइनमेंट बट मुझे कॉल नहीं आया, तुमने क्या एचआर को टच करके फिर से पूछते हो कि उस बंदे का अच्छा गया तो कैसा रहा कैसा नहीं, क्योंकि तुम ये क्यों करते हो कि शायद एचआर के पास कैंडिडेट ज्यादा आते, अपने स्टूडेंट ने अच्छा परफॉर्म किया है तो हम्म। वो एचआर शायद भूले रहेंगे, मतलब भूल गए रहेंगे, तो ये एक बार ने क्या उनको रिमाइंडर करने के लिए तुमने क्या उनको कांटेक्ट करते हो, और फिर ने क्या एचआर का कॉल बैक आता, और कॉल बैक आने के बाद फिर ने क्या एचआर फर्स्ट इंटरव्यू रहता है जो टेक्निकल रहता है, या फिर इंटरव्यू टू इंटरव्यू बेस बेस करता है, अगर टेक्निकल रहेगा तो
तो अगर कल करेंगे या फिर परसों शेड्यूल करने करेंगे, तो एक बार हम्म, स्टूडेंट ने तुमको बता दिया तो तुमने के सारा स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करते हो, अगले दिन बस पढ़ो इतना, और जो कॉन्फिडेंस लेने क्या उतना इंटरव्यू में बता दो। फिर लास्ट में मुझे नहीं क्या सर थर्ड राउंड हुआ था, जो कि हम्म, नहीं क्या मैनेजर के साथ रहा था। और ओके, और वो भी नहीं क्या राउंड सर कैसे देने का है, कैसे नहीं, वो सारा नहीं क्या आपने बताया था कि मैक्सिमम क्वेश्चंस बिहेवियर रहेंगे, और जो बिहेवियर क्वेश्चंस रहेंगे उसके लिए भी कैसा परफॉर्मेंस करने का, कैसे आंसर देने का, तुमने कुछ लिंक शेयर किए थे सर, जो स्टडी मटेरियल भी था, तो हाँ, मैक्सिमम क्वेश्चंस उससे आए थे सर। और ओके, ये तो अच्छी बात है। सो लाइक 3 राउंड ऑफ इंटरव्यू हुए, राइट? बीच में एक एग्जाम भी था, तो उसके बाद जब सर फाइनली, एकदम फाइनली वो ऑफर लेटर हाथ में आता है ना, दैट मिस्टर शिंदे कांग्रेचुलेशन यू गॉट प्लेस, व्हाट इज द फीलिंग, यस सर। कैसा लगा? सर मैं बोल ही नहीं सकता, क्योंकि सर मुझे ने क्या एचआर ने कहा, तो मतलब लास्ट राउंड में मैंने फीडबैक तो पूछा था, बट उन्होंने तो कहा था हम्म, फीडबैक तुम एचआर देंगे। तो एचआर का तो फोन आया था मुझे कि कैसा रहा इंटरव्यू, कैसे नहीं, कुछ आधार या फिर कुछ डॉक्यूमेंट मांग रहे थे, बट सर उन्होंने ओके, कंफर्म नहीं किया था। उन्होंने कंफर्म ओके, नहीं किया था कि तुम्हारा हो गया या फिर ऐसा कुछ। मैंने कहा सर मैं फीडबैक दे दो, उन्होंने कहा कि अभी भी इंटरव्यू राउंड चालू है, तुम्हें नहीं क्या थोड़ा वेट करना पड़ेगा। एक वीक हो गया सर, फिर दूसरे वीक के नहीं क्या 2 से 3 दिन हो गए, फिर मैंने नहीं क्या आपको बोला, मैंने विशाखा मैम को बोला, फिर आपने नहीं क्या उनके उनकी तरफ से नहीं क्या थोड़ा उनको टच करके बोला कि उस बंदे का बहुत अच्छा गया है, कैसा रहा कैसा नहीं। फिर जाके उन्होंने पिंच किया, और फिर जाके ऑफर लेटर आया, और ऑफर लेटर वो मुझे तो लगता है सर मैक्सिमम टाइम से सारे जो अगर कोई इंटरव्यू पास भी हो जाएगा, ऑफर लेटर जो आता है नहीं है, एक ही वजह से आता नहीं, शायद अगर डिपार्टमेंट बड़ा रहेगा या फिर फर्म अगर या फिर कंपनी बड़ी रहेगी, तो वो उनके डेटाबेस में नहीं क्या ज्यादा स्टूडेंट की वजह से वो कभी कभी भूल भी जाते हैं, और उनको रिमाइंडर बैक करने के लिए नहीं कि सर अगर एचआर का पर्सनल नंबर नहीं नहीं देते कोई, अगर पर्सनल नंबर नहीं रहेगा, अगर ईमेल भी करेंगे तो उनके पास बहुत सारे ईमेल्स रहते हैं, पर वो नहीं क्या कैचअप नहीं हो पाता। तो ये कैचअप नहीं क्या होने का काम सिर्फ एक ही है कि वो जो हमारे मेंटर हो तुम हो, मतलब तुम्हारी तरफ से उनका कैचअप जल्दी से होता। तो इसके लिए नहीं कैसे मैं आपको आपको मैम को, जॉब को, कुलजीत सर को, सबको थैंक यू कहना चाहूंगा। और आपकी मतलब मैम का मुझे नहीं क्या फोन आया के बाद तुमको कुछ फीडबैक आई कि नहीं, क्या क्या हुआ। तो मैम का ये कहने के बाद ही नहीं कि विषय का मैम का इतना चीज बोलने के बाद तुरंत नहीं कि सर मैक्सिमम 4 से 5 मिनट में मुझे नहीं कि ये आया है सर, उनका ऑफर लेटर का है। मतलब इतना नहीं ओके, कि तुम फॉलो अप लेते हो, इतना तुम नहीं कि स्टूडेंट के साथ इंटरेक्ट होते हो, स्टूडेंट को तुम नहीं कि अपने परिवार जैसे, मतलब एक छोटा भाई या फिर छोटी बहन, इस तरह राइट, ट्रीट करते हो, तो वो मुझे काफी बढ़िया लगा। और मेन बोलो तो ये सारा कोर्स और सारा कोचिंग ने के ऑनलाइन है सर, और आज ऑनलाइन में ने के सारे एक बार फीस मिलने के बाद बाकी क्लासेस वाले रिस्पॉन्स भी नहीं देते सर। मैंने और मैं सर पुणे मैं लातूर के पास से हूँ, महाराष्ट्र, और आप सर आगरा से है, तो मतलब इतने दूर होके नहीं कि आप मुझे इतना हैंड टू हैंड एक्सपीरियंस देते हो, मतलब इतना रिलेटेड या फिर साथ देते हो, या फिर छोटे छोटे चीजों के लिए नहीं क्या टचअप में होती है। और अगर अगर कोई कोर्स के रिलेटेड या फिर अलग अलग तरीके से व्यूअर रहेगा या फिर पर्सनल कोई प्रॉब्लम रहेगा, अगर तुमको कोई मैं बोलता हूँ, तो तुमने क्या उसी चीज में भी कॉन्फिडेंस देते हो कि भाई ऐसा नहीं होता, ऐसा होगा तो ऐसा होगा, वैसा नहीं तो ऐसा होगा, तो बस कॉन्फिडेंस हो, हम तुम्हारे साथ ही, मतलब इतना तुम पर्सनली भी इन्वॉल्व होते हो, तो उस चीज के लिए नहीं क्या काफी बढ़िया रहा मेरे को। थैंक यू वंस अगेन कि आप इतना हाईली थैंक यू। सोचते हो। इट्स जस्ट दैट स्टूडेंट्स को सही गाइडेंस नहीं, एंड वी वांट आवर स्टूडेंट्स टू बी प्लेस्ड, राइट? हम यस चाहते सर। हैं कि आप लोग को अच्छा जॉब लगे, इसीलिए हम लोग का टीम पूरा टाइम एचआर को ईमेल करता है, यदि नंबर हो तो कॉल करता है, ताकि फीडबैक ले, भाई जल्दी बताओ, यदि ये नहीं तो अगला से, इफ नॉट दिस वन द नेक्स्ट वन, यस सर। क्योंकि यस हम सर। लोग यस चाहते हैं स्टूडेंट्स प्लेस हो, राइट? यस सर। सो हाउ वाज योर पेरेंट्स रिएक्शन, राइट? हम लोग सब पेरेंट्स के लिए काम कर रहे हैं, वी आर वर्किंग फॉर फैमिलीज, राइट? मम्मी यस पापा, लाइक फैमिली का क्या रिएक्शन था, व्हाट वाज देयर रिएक्शन ऑन दिस, ऑन गेटिंग अ जॉब? सर। फर्स्ट ऑफ ऑल सर, ये ऑफर लेटर के बाद आपको पहला तो मैंने ने क्या विशाखा मैम को बोला, विशाखा मैम ने आपको बोला, तो मैंने ने कैसे कैसे रिसीव वाले क्या मेरे फैमिली वाले को बोला, तो फैमिली वाले सारे बोल रहे थे कि जहाँ से क्लास लगाया, मतलब जो सर है सारे मेंटोर से, उनको हमारी तरफ से शुक्रिया कहना, तो वो उन्होंने ओके, काफी हेल्प की। यस सर। और मैक्सिमम टाइम में सर सारे बच्चे को लगता है कि अपने को छोटे मोटे कोर्सेज करके जॉब नहीं लगने वाली है, तो उसके लिए एमबीए करना पड़ेगा, या फिर उसके लिए एमबीए करने को जाए तो कोई फाइनेंशियल स्टेबल नहीं रहता, उसके लिए तो उसको 20 लाख 15 लाख 25 लाख रुपए देना पड़ता। और फिर ऊपर से ने क्या 2 इयर्स ने क्या कॉलेज में निकालने पड़ते, और फिर कुछ स्टूडेंट को ने क्या गिल्टी फील होता, मतलब रिग्रेट होता कि क्यों किया तूने। या फिर उतना होने के बाद भी नहीं कि सर कॉलेज वाले गारंटी नहीं देते, फिर अगर गारंटी भी देंगे तो वो बोलते हैं, अगर फाइनेंस बंदा है तो उसको बोलते हैं कि तुम भाई मार्केटिंग में कर लो। मतलब मुझे मुझे बोलने का एक ही चीज है कि
तुम कम से कम 4 to 6 मंथ मैंने के सारा पढ़कर सर, बिलीव मी सर, मुझे तो है आगे, बाकी का भी मैं नहीं बोल सकता, मुझे है और उसको भी करना चाहिए ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि इधर का द वे ऑफ लर्निंग, द वे ऑफ टीचिंग एंड पर्सनल इंटरेक्शन, वो सारा कुछ देख के नहीं क्या, उधर एमबीए में सर 2 साल टाइम वेस्ट करके फिर जो मर्जी का जो जॉब है वो नहीं मिला तो काफी रिग्रेट होता, काफी पैसा भी बर्बाद होता, तो इधर से नहीं क्या, सबसे अच्छा तुम क्या करो कि 4 महीना महीने के सर तुमने क्लासेस भी प्रोवाइड करते हो, हैंड टू हैंड एक्सपीरियंस होना, सारे असाइनमेंट सारे एग्जाम्स तुम ही करते हो सर। हम्म, और जितना जल्दी असाइनमेंट करेगा उतना नहीं कि बंदे को तुम कॉल प्रोवाइड करते हो, कॉल एक भी नहीं, जब तक बंदा प्लेस नहीं होता तब तक तुम उसको बस कॉल ही देते हो, कॉल ही देते हो, अलग अलग कंपनी, तो ऐसे ही ट्राई करो, तुम वर्चुअल देते हो, तुम नहीं क्या फेस टू फेस के लिए भी रिकमेंड करते हो सर। और मुझे हम्म, सिर्फ और मुझे सिर्फ यही बोलना है कि तुम अगर किसका फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, अगर अगर कोई नहीं क्या अफोर्ड नहीं कर पाता, तो ये नहीं कि सर 4 से 5 महीने का तुमने कि कर लो जॉब आज से, और एक बार नहीं कि सारा नॉलेज प्रॉपर आ जाएगा। अगर तुम्हारा रिज्यूमे रिज्यूमे भी इधर से ही बढ़ा दे, लिंक्डइन अकाउंट भी नहीं कि इधर से ही होता, नौकरी का अकाउंट भी नहीं कैसे तुम ही करते हो, बंदे को सिर्फ पढ़ना है और और ध्यान में रखना है, इतना ही चीज है। और फिर ये करने के बाद तुम जॉब जॉब करते करते वक्त भी नहीं कि ये भी कर सकते हो सर, डिस्टेंस ये भी कर सकते हो, क्योंकि तुम्हें, डेफिनेटली। यस सर, और तुम्हें नहीं कि सर 2 साल खर्चा वेस्ट करने की जरूरत भी नहीं है, और 20-25 लाख रुपए नहीं कि फीस देने की भी जरूरत नहीं है सर। तो मेरा एक्सपीरियंस है, मैं तो इतना बोलना चाहूंगा कि अगर तुम्हें नहीं कि रियल मार्केट या फिर रियल जॉब में जो जो काम करना है वो सारा काम नहीं, क्या मुझे लगता है कि इधर से जो प्रॉपर स्किल्स है जो डे टू डे नहीं के काम में आते हैं वो सीखने के लिए वो नहीं गया, वो मुझे नहीं कि काफी अच्छा एक्सपीरियंस आया यहाँ से। और यहाँ से जो जॉब लर्निंग से जो मैंने सीखा है वही नहीं क्या, जो सीनियर्स रहते हैं या फिर उसके सीनियर्स रहते हैं वो सारे ने क्या डीसीए फाइनेंशियल मॉडलिंग वो सारे ने क्या यहाँ से ही सीखते हैं। और एक कहना चाहूंगा जॉब और लर्निंग को कि सर आपके भी सेशंस उसमें ऐड करें, और आपके सेशंस रहेंगे तो काफी बढ़िया रहेगा आपका, आपके प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, आपकी क्रिटिकल थिंकिंग काफी बढ़िया है। तो आपने के सर एक टाइप से नहीं के बैकबोन हो, मतलब बस फ्रंट में नहीं हो, अंदर से सपोर्ट कर रहे हो, और मतलब एक वन टाइप ऑफ पिलर यू आर सर। थैंक यू, थैंक और यू। बहुत 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 बढ़िया चाहिए। नॉर्मली आई डोंट गेट टू हियर दिस, बट बहुत बहुत बढ़िया चाहिए, थैंक यू। अच्छा बालाजी, लाइक लेट्स रैप इट अप, ओके। आप आज फाइनली एज अ बीकॉम एक अच्छे खासे प्योर फाइनेंस रोल में जा रहे हो, एंड आई होप आप और आगे जाके बड़े बड़े बैंक्स में काम करो, बड़े यस सर। जगहों पे काम करो, बहुत अच्छे पैकेजेस पे काम करो। सो आप उनको क्या बोलोगे, दिस योर फाइनल मैसेज, राइट, कि उन लोगों को क्या, जो लाइक बीकॉम कर रहे हैं या एमबीए कर रहे हैं, बीटेक कर रहे हैं, बट दे वांट टू गो इनटू फाइनेंस, उन लोग क्या करें ओके। टू एक्चुअली गेट इनटू द फील्ड, कैसे करें? ओके सर, मैं जो बीकॉम कर रहे हैं या फिर जो सीए कर रहे हैं, अगर वो फ्रस्ट्रेटेड है या फिर उनको लग रहा है कि अगर उनको नहीं हो रहा, तो मैं बस उनको ये करना कहना चाहता हूँ, जो रियल मार्केट या फिर प्रैक्टिकल मार्केट में जो इंडस्ट्री में जो जो काम रहता है वो नहीं कि जो स्किल्स है वो सीखो तुम, मतलब हैंड टू हैंड प्रैक्टिकल स्किल्स सीखो, जैसे पाइथन एसक्यूएल, अगर मैं जो सीखा वो बोल रहा हूँ, डेटा एनालिसिस सीखा हूँ, फाइनेंशियल मॉडलिंग सारा नहीं कि जॉब अच्छे ही सीखा हूँ। तो अगर ऐसा ही नहीं है कि तुम बस सीए बन गए, तुम्हारे दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है, या फिर सीएफए बोलो, तो उसके लिए एक जो सीएफए सीए के जो क्वालिटीज है जैसे कि स्किल्स है, अगर तुम उसको नहीं क्या जो छोटे से अमाउंट में और विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम, मतलब कम से कम टाइम में अगर तुम बाहर से सीख सकते हो, और बाहर तुम्हें एक अच्छी सी सर्टिफिकेट भी मिल सकती है जैसे कि जॉब स्किल लर्निंग के, तो तुमने क्या टाइम वेस्ट मत करो उसमें, तुमने क्या पहले क्या करो, एक प्रॉपर जॉब सिक्योर करो, प्रॉपर जॉब सिक्योर करो, और नहीं क्या फाइनेंशियल नहीं क्या फ्री हो जाओ, तुमने क्या घर वाले पे डिपेंड मत रहो, तुम खुद पे नहीं क्या ये एक स्किल बेस पे जॉब करो, धीरे धीरे तुम्हें एक्सपीरियंस भी मिलेगा, धीरे धीरे नहीं क्या तुम हैंड टू हैंड पूरे इंडस्ट्री का नॉलेज भी होगा, और तुम्हें नहीं क्या बाद में नहीं के साथ साथ तुम एक्सपीरियंस लेते हुए अपने के सीए भी कर सकते हो। तो बस मैं ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक टाइम बाद नहीं कि रिग्रेट होना चाहिए, ऐसा होना नहीं चाहिए, क्योंकि सीए करने को नहीं कैसा 3 साल आर्टिकलशिप रहती है मैक्सिमम, फर्म्स ने का आर्टिकलशिप सर कुछ वैल्यू भी नहीं देते, और आर्टिकलशिप में कुछ स्टाइपेंड भी नहीं मिलता सर, मतलब 3 साल ने कैसे आर्टिकलशिप में वेट से अच्छा है कि तुम 4-5 महीने में सारे स्किल सीख लो, और एक बार घुस जाओ, और एक बार घुस गए तो कमाने भी लगोगे, एक्सपीरियंस भी मिलेगा, और फिर बाद में जो सीए जो करना है या फिर सीएफए करना है या फिर सीए में करना, जो भी करना है तो साथ में करो, तो घर वाले भी खुश, तुम भी खुश, कंपनी भी खुश। अगर तुम्हारे पास प्रॉब्लम है पैसे का, तो कंपनी तुम्हें स्पॉन्सर भी करेगी, एमबीए के लिए भी करेंगी कंपनी, आपको रिक्वेस्ट करेगी राइट, कि मैं बाद में जाके नहीं क्या कंपनी को ऐसे से फायदा कर सकता हूँ, तो कंपनी तुमको स्पॉन्सर भी करेगी, और तुम्हें एक्सपीरियंस भी आएगा, मतलब तो तुम्हें ऐसे रिग्रेट नहीं होता, मतलब तुम कम से कम टाइम में नहीं क्या सब सारा कुछ अचीव कर सकते राइट। बहुत बहुत अच्छे नोट्स बालाजी, एंड लाइक वी होप द वेरी बेस्ट, राइट।
ना आगे जाके आप इस जॉब में और एक्सपीरियंस बिल्ड करोगे, अपना सीवी बिल्ड करोगे, और नॉलेज लोगे, कोर फाइनेंस में नॉलेज लोगे। बस इसके बाद आप फिर अपना सीए जहाँ बैक ट्रैक में रह गया था, मे बी आप सीए कंटिन्यू कर सकते हो Yes, या फिर yes, एमबीए आगे कर सकते हो, बट same. आप अभी Yes, जर्नी sir. स्टार्ट कर दोगे एंड यू स्टार्टेड एट अ Yes, वेरी sir. गुड टाइम। Yes, sir. यू Yes, sir. So how old are you, Balaji? So I'm actually now 25, sir. So you're 25 एंड आप Yes, sir. बीकॉम हो, आप ऑलरेडी घर को सपोर्ट करने के लिए काम कर रहे थे एंड आज आप एक प्रॉपर कॉर्पोरेट रोल में भी यू आर वेल Yes, ऑन sir. टाइम। बहुत लोग 28 29 पे जाके फैमिली सपोर्ट कर पाते हैं। इट्स अ वेरी बिग Yes, थिंग। sir. ओके, वी आर जवान आर प्राउड ऑफ यू दैट यू आर वर्किंग Yes, सो sir. हार्ड। Okay, so I hope Yes, the sir. very, very best, Balaji. So let's wrap this up. Right. Thank you so much for joining us, Balaji. And I hope कि आपका एग्जाम्पल देख के और भी स्टूडेंट्स इंस्पायर हो कि कुछ अच्छा करे, कुछ और बड़ा करे। राइट। आज भी जो भी हो वो बस जॉब आज, और अमन सर तुम्हारे वजह से, विशाखा मैम ने भी काफ़ी हेल्प की, और सर सबसे बढ़िया तो कुलदीप शर्मा सर, जो मेरे मेंटर काफ़ी दिन से मैं उनको फॉलो करते हूँ, स्पेशली उनको थैंक यू बोलना चाहूँगा। एंड थैंक यू अनवे, ऐसे ही नहीं क्या, लॉन्ग टर्म में आपसे कनेक्ट होकर और भी सीखने की कोशिश करूँगा, जितना ये बहुत ही Definitely, definitely, definitely. थैंक Okay, thank you, Balaji. Bye bye. यू सो मच।